Yes. Namaste, everyone. I'm so excited to welcome all of you today. Before we dive into this conversation, let me quickly introduce myself. Hello, everyone. My name is Krupa Nishar. I'm a forensic psychologist and a dedicated researcher working in the field of prison, crime, and justice system of India. I'm thrilled to share that this interview marks the launch of my YouTube channel dedicated to forensic and legal psychology, and this is our first ever video, and it's part of a special World Mental Health Month series titled A Day in the Life of Justice. In this series, will be talking to the often unseen people who work behind the scenes of the criminal justice system, from filmmakers and crime journalists to law students and digital storytellers, exploring their journeys, challenges, and the mental health realities they face every day. And today, I have the privilege of interviewing someone who lives and breathes ground level crime stories, Mr. Shakil Hassan. I hand over to Hiral to introduce him. Yes, thank you so much, ma'am. So, I'm Hiral Jogaria, and before we begin, I'd love to take a little moment and share about this initiative. As we all know, 10th October is celebrated as World Mental Health Day, and this year we wanted to do something different. So, mental health conversations are often limited to therapy and wellness, but there's so much more to it, right? Especially when it comes to fields like forensic and criminology, where people are dealing with trauma, crime, justice every single day. So we decided to create a space to talk about mental health in these intense professions, from those who manage crime media pages on Instagram to those behind the camera of crime documentaries, and even those who write about real life cases. So these are important conversations that we should be having, especially around World Mental Health Day. Right? Wouldn't you agree, ma'am? Yes, exactly, Hiral. And today's guest truly represents that world. Shakil Hassan is one of the founders and editors of the crime news agency Why Crime, which goes beyond traditional reporting. His team doesn't just rewrite news, they go to the ground, talk to victims, investigate cases, and bring real stories to light. Yes, Hiral, what do you think about it? Yeah, he's also written pretty powerful pieces on men's rights and has been working on the exposure of corruption cases, all while keeping one core goal to bring real change through journalism, which makes this interview all the more exciting, ma'am. Absolutely. We're so glad to have you, Shakil, with us today to open this series. थैंक 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 यू फॉर इनवाइटिंग मैम। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहला इंटरव्यू देने को मिल रहा है, और वो भी आपके साथ। और एक एक टाइम था जब मैं आपको उस नज़र से देखता था कि हाँ, मैम के साथ मेरा बात हुआ है। तो अभी जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और आपका फर्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश Thank you, Shakil. And we are absolutely also happy to collaborate. I think Why Crime has been one of the pages that has been inspirational for me. So thank you. हूँ। So I थैंक think let's start the show then, Hiral. Yeah. यस मैम। So Yes. Okay. So, Shakil, let's start right from the beginning. Tell यस मैम। us a little bit about Why Crime. What was your inspiration and vision behind creating this platform? And what gap did you hope to fill through your work in crime journalism? मतलब आप अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट मोड में आपने ये शुरू किया. So I think that is quite a visionary mode. तो आपने ये कैसे शुरू किया? ओके मैम, तो ये थोड़ा स्टोरी थोड़ा लंबा है। तो ये स्टार्ट हुआ 1 1.5 साल पहले की बात। उस टाइम पे मैं फेसबुक और ट्विटर पे बहुत लिखता था। तो ट्विटर में आप लिख सकते हो, लेकिन फेसबुक में लिखना मैंने थोड़ा स्टार्ट किया। तो क्या हुआ मेरे साथ, अ, 3 दिन के लिए मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया कि तुमने कुछ गलत लिखा है कि जो फेसबुक के पॉलिसी के अंडर नहीं है। तो मुझे लगा मैंने तो इतना गलत लिखा नहीं था।
तो ऐसे ही मैं बैठा था, तो मुझे लगा कि मैं इसको क्यों ना ऐसा पेज बनाऊं जो कि क्राइम क्राइम नहीं सोचा था उस टाइम पे, न्यूज पे सोचा था। तो वो टाइम था December 29 था। फिर उस टाइम पे मैंने वाई न्यूज करके मैंने पेज खोला, वाई न्यूज। तो ये किसी को मैंने बोला नहीं अभी तक कि मेरा वाई क्राइम नहीं था, वाई न्यूज कवर किया। करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मेरा जो रूटीन है वो पूरा क्राइम के रिलेटेड है। तो मैं क्यों इसको पूरा न्यूज के ऊपर मैं कवर करूंगा? तो किसी का अगर वो भी हुआ है, कुछ भी हो रहा है तो मुझे कवर करना होगा, है ना? कि कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ किया है तो मुझे लगा नहीं, न्यूज नहीं, तो मैं बस क्राइम रिलेटेड ही करूंगा, फॉरेंसिक रिलेटेड करूंगा। और मेरे घर में भी ऐसा थोड़ा है, कोई लॉयर कोई कुछ, तो मेरा इकोसिस्टम थोड़ा वैसे मैच हो। तो मैंने बोला नहीं, इसको क्राइम करते। तो 3 न्यूज कवर करने के बाद मैंने उसका नाम चेंज किया उसके नेक्स्ट डे। यस, तो वो 30 था, तो 30 में मैंने इसका नाम कर दिया वाई क्राइम। तो अभी जब भी हम वाई क्राइम का एनिवर्सरी करते हैं तो हम उसको 30 दिसंबर करते हैं, क्योंकि उस तरह से ये वाई क्राइम नाम आया। तो अभी इसके पीछे ये भी है कि मैंने इसको वाई क्यों डाला, है ना, कि मैं नाम कुछ और भी डाल सकता। तो इसमें मैम बात ये है कि मुझे हमेशा से क्वेश्चन करना बहुत पसंद है कि अगर ये हुआ है, रीजन क्या है। जैसे कि अभी हाल ही में जो हरियाणा में जो आईपीएस का जो है, तो उसमें भी आप अगर कैप्शन देखेंगे तो मैंने उसको कैप्शन में ये डाला कि इसी आईपीएस के साथ क्यों, क्या ये बस दलित था इसीलिए। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बस खुद के लिए नहीं, अगर कोई पढ़ रहा है तो सामने वाला जो मेरे व्यूअर्स है या रीडर है उनको भी लगे कि हाँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं भी एक टाइम के लिए सोचता हूँ कि क्या रीजन हो सकता है। तो यही रीजन है कि मैंने इसके लिए उपाय डाला, उपाय कराए। फिर धीरे धीरे मैंने इसको लेके गया। फिर मैंने एक दो अपने दोस्त से मिला, फिर मैंने बताया कि देखो दोस्त, बात ये है भाई, ऐसे ऐसे कर रहे। तो उन्होंने बोला इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला इसको वेबसाइट बनाते हैं, इसका ऐप बनाते हैं। फिर हमने इसका ऐप लॉन्च किया 2 महीने बाद गूगल प्ले स्टोर में। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमने एक दो लोग टीम में लाए, है ना। उसके बाद मुझे 3-4 महीने बाद मुझे याद आया, अ, मैं भूल गया था ये चीज, ये बहुत साल पहले की बात है, मैं क्लास 9th में था। तो उस टाइम पे मेरा मन था कि मैं किसी बाहर के एक यूनिवर्सिटी में पढूं। मुझे अलीगढ़ जाना था। ठीक है, बचपन से मेरा था कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तो उस टाइम के लिए मैं उसका एंट्रेंस बुक पढ़ रहा था। तो उसमें एंट्रेंस पे बुक जनरल एक सब्जेक्ट में एक पेपर होता है, तो वो मैं पेपर पढ़ रहा था। उसमें मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला था कि इंडियन प्रेसिडेंट का मौत बहुत साल पहले, जो कि ऑफिस में हुआ था। तो यही, मैं छोटा भी था, क्लास 9 में था, तो मैं अपने टीचर से भी पूछता था कि ऐसे 2 लोग अचानक से ऑफिस में मर गया, और हमें बस एक बुक में मिलता है, कोई किसी को क्यों नहीं पता क्या रीजन रहा होगा एज। तो यही सब था। तो मैं बहुत लोगों से बात किया, तो मुझे ना मेरा कजिन है, उसने बोला कि शकील, तू इसको ऐसे नहीं कर पाएगा, तू जर्नलिस्ट है। लेकिन वो चीज मैं भूल ही गया कि मुझे ये बोला था। लेकिन 3-4 महीने बाद मुझे याद है, हाँ उसने बोला था। लेकिन मैंने जर्नलिज्म लिया नहीं, मैंने फिर फॉरेंसिक साइंस लिया। लेकिन इसको थोड़ा मैंने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद अभी इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वाई क्राइम को। अभी
इसी साल जो है 2025 को हम अभी दिसंबर में हम इसको करेंगे। जैसे कि अभी न्यूज़ तो हम कवर ही करते ही है, उसके अलावा हम फॉरेंसिक भी हमारा एक डिवीजन है। उसके बाद लॉ भी एक डिवीजन है जिसमें अगर किसी को लॉयर की भी जरूरत है तो वो वाई क्राइम के पास है, और कोई केसेस भी है तो वो भी है। तो हमने इसको अभी वाई क्राइम 3 पार्ट में डिवाइड है, एक जर्नलिज्म, एक क्राइम, और एक लॉ। यस मैम। यस, आई थिंक दैट इज ब्रिलियंट। आई थिंक वो आपकी जो जर्नी आपने बताई, वो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता कि हमने ये शुरू क्यों किया था, बट शुरू वो क्यों कभी किया? हमें ऐसे स्ट्राइक हो जाता है कि अच्छा ये बचपन में हुआ था ना, बचपन से मुझे पता था कि हमें यही पता करना है। यस यस। एंड वो फ्लो होता जाता है ऑटोमेटिकली, कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स आते जाते हैं। आई थिंक यस, तो शकील, इट वाज अ ब्यूटिफुल आंसर एंड आई एम वेरी वेरी थैंक यू। प्राउड ऑफ यू about your journey, about your aim, your vision, everything. Okay, now coming to the most interesting part which I've been waiting for is you have been reporting on crime from the ground and not just rewriting news, but actually meeting victims, visiting crime scenes, uncovering real facts. That must come with its own challenges. So, can you share a few situations where you faced risk, danger, struggles while reporting? And how did those experiences shape the way you work today? हाँ मैम। तो अभी जो मैं बोलूंगा ये शायद ही मैंने किसी को बोला है, और इस इस मीटिंग में मैं जितना भी बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही कम किसी को बोल रहा है। तो इसमें काफी सारे इंसिडेंट है। तो अगर पहले मैं स्टार्ट करूँ कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने 2-3 किया, जिसमें सीन विजिट किया। मैं नहीं गया था, मेरे टीम से 1-2 लोग गए थे। एक मुंबई कॉलेज में एक वो हुआ था, फिर उसमें एंट्री नहीं दिया, गेट में गार्ड ने रोक लिया तो उसमें जा नहीं पाए। फिर हमने अ, दिल्ली के हॉस्पिटल में केस हुआ था, उसमें हमने वो किया। फिर जो पहलगाम में जो हुआ था, तो उसका इन्फॉर्मेशन आप देखे होंगे कि हमने व्हाट्सएप में ग्रुप में हम बहुत एक्टिव थे। हम शेयर करते थे कि क्या ऑथेंटिक है और क्या नहीं। तो इसके भी पीछे रीजन है। इसके पीछे पहला रीजन है कि मेरा काफी जर्नलिस्ट से बहुत अच्छा है जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, कि जो फेमस है एक है जिस्ट के जर्नलिस्ट मुकुल सिंह चौहान। तो उस टाइम पे वो वहां पे थे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उनको मैं पूछता था क्या ये सही है, तो कुछ ऐसा है। और काफी काफी ऐसे केसेस है जो मैं विक्टिम्स के साथ बात करके मैंने उसको केस को किया। इसमें से 3-4 केसेस है। एक पहला केस, एक लड़का था, उनसे मेरा अभी भी बात कभी कभी होता है। वो आईआईटी से है, ठीक है। तो उनके ऊपर एक कुछ ही महीने पहले हो रहा था ना कि साइबर अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट का जो चल रहा था, उनके साथ वो होने वाला था। तो उसका पूरा डिटेल्स उन्होंने, फिर मैंने उसके बात किया, फिर मैंने उससे सुना कि एक्चुअली क्या रीजन था, कैसे कैसे उन्होंने प्रोसेस किया, है ना। फिर एज ए तुम एक इंजीनियर हो के, आईआईटीएन हो के, तुम उसको कैसे, तो फिर हमने उसको केस को कवर किया। जो ऐसे ऐसे कुछ केसेस है जो एक्सक्लूसिव है। फिर हमारा यही एक केस जो हमने थोड़ा एक्सक्लूसिव हमने कवर किया, जिसमें हमें थोड़ा दिक्कत आया। वो आपको पता होगा कि नहीं, एक केस है जिसमें एनआरआई स्कैम के बारे में हमने कवर किया था, जिसमें जो लड़का है जिन्होंने स्कैम किया है, वो 14 इंडियंस को, वो भी इंडियन है लेकिन वो फ्लोरिडा मायामी में रहता है। उन्होंने 14 लोगों के साथ चीट किया, शादी शादी का 2-3 लोगों को शायद शादी के लिए फंसाया। और यूएसए में क्या होता है ना कि आप अगर वहाँ पे ग्रीन कार्ड चाहिए होता है तो बहुत सारे वो चाहिए होता है, तो वो लोग ना शैम मैरिज करते हैं। शैम मैरिज यानी फेक मैरिजेस करते हैं। तो फिर ऐसे 2 लड़कियों के साथ ऐसे शादी का, तो केस थोड़ा लंबा है।
तो ये केस थोड़ा हमने, एक विक्टिम थे जो कि अभी वो भी फॉरेन में रहते, तो उनके साथ हमने कनेक्ट किया था, उन्होंने हमें कनेक्ट किया था। उनका स्टोरी शायद पीपल्स ऑफ मुंबई या पीपल्स ऑफ इंडिया, एक पेज है उसमें भी आया था। फिर उन्होंने हमें कनेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है कि आप लोग कवर कर सकते। फिर हमने उसको कवर किया। फिर वो कवर करने के बाद उसका व्यूज बहुत ज्यादा आया, उसका शायद 2 लाख गया होगा व्यूज। 2 लाख जब व्यूज जाता है तो मेरा नॉर्मल रीडर नहीं रहता उसमें, फॉलोअर्स में से रीडर नहीं रहता, वायरल हो जाता है वो किसी ना किसी तरह। वो जो अ, जो उनके पीछे है, मतलब जो एक्यूज्ड है, उनके तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो शेयर करेगा ही कि देखो तुम्हारे बारे में। तो ये जाके उसका जो भाई है, जो मुंबई में रहता है, अ, उनके पास पहुंचा। उनके पास जब पहुंचा, ट्विटर में मुझे बहुत धमकिया, इतना धमकिया कि मुझे थ्रेट्स आने लगे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तू है ना, मेरा फोटो वायरल हो गया, पता नहीं बहुत कुछ। अ, फिर वो केस थोड़ा मेरे लिए टेंशन का था। और हमने एक केस था जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, वो है जो आपका रोहन मेहता जो केस है, जिन्होंने बोला था एक्सटर्नल अफेयर्स में करप्शन केस है। उनको मैं मिला था किसी एक ग्रुप में, जब उन्होंने अपना स्टोरी शेयर कर रहे थे, तो फिर मैंने उसको कनेक्ट किया था। फिर मैंने दीपिका भारद्वाज जो मैम है, जो मेंस राइट एक्टिविस्ट है, फिर मैम के साथ मैंने शेयर किया। मैम बोले हाँ। तो फिर हमने उनको, उनके जो केस है वो बहुत एक्सक्लूसिव हमने शेयर किया था। और उनके साथ मेरा बात होता था कि ये हुआ वो हुआ, वो बहुत था। और उसके बाद अगर हम बोले कि जो प्रॉब्लम होता है मुझे, जैसे कि कुछ टाइम मैंने पॉलिटिकल बहुत इन्वॉल्व था, न्यूज में पॉलिटिकल क्राइम, पॉलिटिकल करप्शन। तो इसमें मान लीजिए, आप अगर बीजेपी को बोलेंगे तो आपका जो मैसेज का जो रिक्वेस्ट है उसमें आपको गाली आ जाए। ठीक है, आप अगर कांग्रेस के लिए बोलेंगे आपको गाली आ जाएगा। मैं ममता बनर्जी के बारे में बोल रहा हूँ कि कोलकाता में क्या हो रहा है, आपको गाली, क्योंकि हर किसी का सपोर्टर होता है। और मेरे जो फॉलोअर्स है, हार्डली मैं 50 लोगों को ही जानता हूँ। ये फैक्ट है मैम, कि जो मेरे फॉलोअर्स है उनमें मैं 50 लोगों को जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, है ना। बाकी को मैं तो जानता नहीं, तो मुझे पता नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। और जब कोई भी एक न्यूज थोड़ा वायरल चला जाता है, फिर उसमें कमेंट भी ज्यादा आता है ना। कोई में 4 लाख 5 लाख अगर चला गया, फिर उसमें कमेंट्स में भी ये कि तू तो वो है, तो ये सारे देख के मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मुझे हैबिट है नहीं कि मुझे इन चीजों के लिए गाली पड़े। तो अभी मैं पॉलिटिकली थोड़ा उसको कट कर दिया, मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है। बाकी मुझे पसंद होता है जब मैं विक्टिम से बात करने की बात कर पाता हूँ, तो उनसे इंफॉर्मेशन हम निकल सकते हैं। और अ, बस इतना ही है। यस, आई थिंक जो जो मतलब जो केसेस की वैरायटी आपने शेयर किया वो अमेजिंग था। राइट फ्रॉम करप्शन हो गया, हॉस्पिटल केसेस, टेररिज्म केसेस, स्कैम केसेस, आई थिंक बहुत वैरायटी ऑफ केसेस आप कवर कर रहे हो। एंड आई थिंक वो एक लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि इस टास्क पे हमें काम करना है, ये प्रायोरिटी नहीं है हमारा। तो आई थिंक वो एक करियर का एक आर्क ही होता है कि हमें हमारे फोरेंसिक में या हमारे इंस्टाग्राम पे ये चीजें दिखानी और ये चीजें नहीं दी। वो ट्रायल और एरर में ही होता है। बट आई थिंक हर कोई केस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो ही जाता है फाइनली। तो वी इट्स लाइक यू कैन नॉट एवर लीव पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स से दूर हो तो आप कभी लाइक अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हो। तो हाँ आई थिंक पॉलिटिकल तो हमारी लाइफ है ही, कुछ भी कर लो। हाँ, यस। एक मेरा आप व्हाट्सएप का जो बायो है उसमें आप देखेंगे कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। तो ये फैक्ट है कि यस। सब। और आपने अभी एक
मूवी है शायद, उसमें बोलता है कि तुमने जब से जन्म लिया है तुम पॉलिटिकली तुम कनेक्टेड हो गए, तो ऐसा है। करेक्ट, हमारा जो नेम हो गया, हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, सोशल कंडीशन, सब कुछ करेक्ट। Yeah. और मतलब इस ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे एफआईआरस हो गए? जैसे काफी सारे आजकल इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स को होना पड़ रहा है कि एफआईआर पे एफआईआर आने लगे उन पे। ओके मैम, तो हाँ, एफआईआर में तो क्या होता ऐसा है ना, कुछ। उसमें उसमें लीगल नोटिस आते हैं। लीगल नोटिस डिफेमेशन केस का आता है ना। अभी बीएनएस में शायद उसका 350 365 या 356 उसका सेक्शन, तो डिफेमेशन केस लगता है उनका। तो लीगल नोटिस भेजते हैं लॉयर। तो वो जो मैंने बोला है कि जो केस था एनआरआई स्कैम वाला, जहाँ पे लड़के को होता था, उनके भाई ने मुझे वो थ्रेट किया था कि मैंने तेरा पूरा शहर, तेरा एड्रेस, तू कहाँ का है क्या है, मैंने लॉयर के साथ शेयर किया, तेरे पास जा रहा है डिफेमेशन केस का लीगल नोटिस, मुंबई में तेरा केस है। लेकिन बात क्या है कि अभी तक मुझे ना मेल आया, ना मुझे उसका कोई कुछ आया ट्रू? कुछ आया अब है, ऐसे बस वो फेक धमकी थी। हाँ। वो धमकी रहता है। लेकिन एफआईआर एफआईआर होते हैं, कुछ कुछ एफआईआर होते हैं, जैसे कि कोई अगर कुछ बोल दिया बहुत, जैसे कि असम में अभी हो रहा है, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया पॉलिटिकली या गलत बोल दिया, तो उन पे एफआईआर लगता है, उठा के लेके जाते हैं। ऐसा है नहीं, नहीं होता है। लेकिन बात क्या है कि जो बड़े बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उनका टीम बहुत स्ट्रांग है ना। लेकिन आप अगर डिजिटल मीडिया को देखोगे, जैसे कि हम हैं और भी लोग हैं, वो बहुत ही वो है, छोटा है। मतलब उनमें इतना बड़ा टीम टीम नहीं होता, कॉर्पोरेट लाइफ नहीं है उनका, है ना। जैसे कि जितने भी केसेस लगते हैं, किन पे लगते हैं, यूट्यूबर पे लगते हैं, इंस्टा करेक्ट। पेज जो चलाते हैं, फेसबुक पे जो करेक्ट। पोर्टल चलाते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रांग है नहीं, है ना। और और मुझे एक ये है कि ये जो मेरा जर्नी है, जब भी मैं कवर करता हूँ, तो मुझे बहुत टाइम मुझे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिला है। जैसे कि इस फील्ड में जितने भी है, जैसे कि इस फील्ड में मैंने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट से मेरा बात हुआ है, अच्छे अच्छे फॉरेंसिक टीम, फॉरेंसिक के फील्ड में जो है, फिर एडवोकेट जो है, बहुत बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के भी एडवोकेट, उनसे भी हुआ है। ये ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो मैं कनेक्शन उनसे बना पाता हूँ, तो कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलता है। तो इसका एक रीजन है कि जब रोहन मेहता वाला केस था, तो बहुत वायरल था, और हमने बोला था कि बहुत पहले हमने उसको कवर किया था। तो ध्रुव राठी का जो राइटर है, डॉक्टर विजेता दहिया, डॉक्टर नहीं सॉरी, विजेता दहिया है ना। आप देखिए उनके उसके वीडियो में आता है, रिसर्च बाय विजेता दहिया। तो उनके साथ मेरा फोन पे बात हुआ एक बार, इसी के रिगार्डिंग। फिर अ, आज तक और इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट है, उनसे बात हुआ, कुछ केसेस के रिलेटेड, है ना, जो फेक केसेस लगता है। दीपिका मैम से तो मुझे काफी टाइम बात होता है, वो भी बहुत बड़े पोजीशन में है इसमें। फिर एक मेडिकल एसोसिएशन का स्पोक पर्सन भी बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट के राइट्स के लिए काम करते हैं, डॉक्टर ध्रुव चौहान। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो एक आर्मी मेजर के ऊपर मेड ने 6 इयर्स के लिए वो उसमें थे, फेक रेप केस में थे, उनका जो एडवोकेट था, मैं उनका नाम भूल गया, कभी कभी काफी फेमस है वो, उनके साथ भी मेरा हुआ। अभी फॉरेंसिक में केशव सर से कभी बात होता है। फिर और भी लोग हैं अभी, जैसे कि फॉरेंसिक लैब जो है, सॉरी फॉरेंसिक जो वैन है, उनका जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो 3 लोग करते हैं। एक तो महिंद्रा है, फिर आपका अ, आ- आजिल फेब्रिटेक करके है ना। तो आजिल फेब्रिकेट के जो फाउंडर है, उनसे मेरा बात होता है। तो ऐसे काफी मैंने वो बनाया है। तो वो मुझे एक टाइम पे अगर मैं लॉ फील करता हूँ ना कि नहीं, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर याद आता है कि 1 डेढ़ साल में मैंने अपना जो
जर्नी जो हम मैंने स्टार्ट किया है वो काफी अच्छा डायरेक्शन में है। और ये भी बात मैं सोचता हूँ कि कभी कभी अगर मुझे कोई बोलता है कि देख शकील, ये तेरा कंटेंट इसने कुछ उठाया है, तो उसको लेके मैंने कभी टेंशन नहीं लिया। इसका मेन रीजन ये है कि मैंने बाइक क्राइम को हमेशा प्रोफेशनल की तरह इसको मेंटेन किया। इसको इसको जब भी कोई भी पोस्ट, हम इसको पोस्ट करके बहुत प्रोफेशनली इसको पोस्ट करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि क्लास 8 9 के बच्चे इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई भी इवेंट होता है हम उसमें भर भर की स्टिकर्स हम नहीं लगाते ताकि ये प्रोफेशनल लगे, है ना। और अगर कोई जैसे कि मेरे टीम में भी बोलता है कि ये मेरा कंपटीटर है, कंपटीटर न्यूज में नहीं बोलते, लेकिन हम फॉरेंसिक में भी है, तो उस फील्ड में बोलते हैं कि ये तेरा है, इसने। जैसे कि कभी कभी डेट हमारा है कि हमने इस डेट पे ये इवेंट लगाया, एक दो गैप में सेम इवेंट में सेम टाइम का अगर इवेंट रख देता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है। तो उसको भी हम ऐसे मेंटेन करते हैं कि मैं खुद को स्ट्रांग रखता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा से वाई क्राइम को जो है वो बाकी 20 30 ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा मैं इसको अलग देखता हूँ। क्योंकि बाकी लोग महीने में 4 दिन भी अगर काम करे तो उनका काम हो जाता है ना, वो लोग जो भी करते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हमें हर रोज करना पड़ता है, हमें हर रोज घिसना पड़ता है खुद को। मतलब हम हर रोज एक एक स्टेप हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उस चीज को मैं खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं खुद को ही मोटिवेट करता हूँ। और इसी के थ्रू मैं कभी चीजों को लेके ओवर थिंक नहीं करता हूँ। कोई भी दिक्कत आए तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, ये रह गया है, इसको और आगे लेना है ना। जैसे कभी कभी मैं आ, वो भी लगा देता हूँ कि रिस्क हो जाता है ना। कभी कभी कुछ इवेंट हो जाता है, आपको पता नहीं होता है कि इस इवेंट में कितने बच्चे आपको पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आप जिनको गेस्ट बुला रहे हो, आप तो जैसे कि अभी हमने जो गेस्ट बुलाया है प्रियांशी जैन मैम और इनको गौरव गिल सर, है ना, जो कि राष्ट्रमणि के हम्म। पॉडकास्ट आए हैं, है ना। और आपका ट्राई लीगल है जो इंडिया के हम्म। बहुत बड़ा एक लॉ फर्म है, उनका जो है राहुल आनंद सर। तो ऐसे लोगों को जब हम बुलाते तो रिस्की हो जाता है। लेकिन इससे हम्म। क्या होता है ना मैम कि आप मोटिवेट रहते हो कि नहीं, हम एक और स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम्म। हमारा कोई इवेंट में हमारा कोलैब होता है, जैसे कि अभी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होगा मेंस राइट के ऊपर 15 नवंबर को, तो उसमें हम एज ए मीडिया हाउस हम उसमें ठीक करते हैं। है। तो ये सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती हम्म। आई है। यस थिंक मैम। बहुत स्प्रेड आउट हो रहा है वाई क्राइम अभी यस हर मैम। यस। जगह पे। दैट्स सो कूल टू हियर एक्चुअली। ओके, हम तो जैसे अभी आपने बीच में बोला था कि कभी कभी आपको लो भी फील करता है, तो हमारा आई थिंक वही नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। कि जब भी वी आर लाइक एज क्राइम ऑल्सो एंड यू और फोरेंसिक फील्ड में we are constantly surrounded by stories of violence, tragedy, injustice, and that can be emotionally very heavy. And as someone like you who's running a page जहाँ पे we share graphic and sensitive content and we are surprised by every new crime कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। How do you recognize कि अभी बस बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए मेंटली, तो मैं एक स्टेप बैक कर रहा हूँ या डिटैच कर रहा हूँ अपने वेलबींग के लिए? लाइक हाउ डू यू ड्रॉ दैट लाइन और बाउंड्री फॉर योर सेल्फ? हाँ, तो ये जो क्राइम न्यूज़ है ना, तो मैंने आपको एक बोला है कि वाई क्राइम अभी मेरे लिए रूटीन हो गया है। तो मुझे हर रोज इसको कंज्यूम करना पड़ता है, और मेरे जो व्यूअर्स या रीडर हो वो जितना कंज्यूम करते हैं, शायद कोई 2 सेकंड में उसको स्वाइप अप करते हैं, है ना, स्क्रॉल डाउन करते हैं। लेकिन कोई अगर 5 मिनट लेके भी पढ़ता है, लेकिन उसके लिए मुझे 1 घंटा लगता है। तो उस केस में जो पढ़ रहा है वो जितना इन्वॉल्व है उससे ज्यादा मैं इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि जितना हम लिखते हैं या पब्लिश करते हैं उससे ज्यादा हम नहीं करते, वो रह जाता है कुछ चीजें, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका बेंगलोर में जो डीजी फॉर्मर डीजीपी का जो
डेथ हुआ था, बोला था कि उनकी बीबी ने या उनकी बेटी ने मर्डर किया है। तो बैंगलोर के मेरे दोस्त थे जर्नलिस्ट में, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो होता है ना कि फोटोज वगैरह आ जाते हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, ना कि मैं ग्रुप में करता हूँ ना किसी और को करता हूँ, मेरे पास आ जाता है। तो जब मैंने वो फोटो देखा था, है ना, कि ब्लड कैसे मतलब फ्लोर पे गिरा हुआ है, और एक डीजीपी था उनका ऐसा हाल है, तो वो बहुत ही शॉकिंग था। और एक केस है, एक कोई कांस्टेबल था जो 1 महीने से गायब थे, उनका जब डेड बॉडी मिला, और देखने देखने का वो नहीं था। जब मुझे फोटो मिला ना, आप, ना आंखें थे, ना दांत था, ना दांत थे, पूरा ऐसे गिरा हुआ थोड़ा, फिर पूरा एकदम बॉडी काला पड़ गया है। तो ये सब मैं कभी शेयर नहीं कर पाता, तो देख के मुझे बुरा लगता है। तो ये न्यूज के रिलेटेड जो है मुझे बहुत वो करता है। और दूसरा चीज है कि मैं फॉरेंसिक में हूँ, तो मुझे ऑटोप्सी वगैरह भी देखने को मिलता है ना। तो मैं गया था ऑटोप्सी के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, और उसमें से जब मैं आता हूँ तो मैं खाना नहीं खा पाता। ठीक है। तो मेरा, एक तो न्यूज में मेरे को दिक्कत है कि न्यूज में कर कवर पर उसमें भी मुझे ऐसे फोटो देखने को मिलता है। फिर मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें भी ऐसे फोटो देखने को मिलता है। मैं इंटर्नशिप में गया था, उसमें मैं क्राइम सीन विजिट करता था, तो उसमें भी मर्डर केस में ब्लड देखने को मिलता है। फिर कोई सुसाइड किया है उसको देखने को मिलता है। तो फिर पूरा जो ऐसे रूटीन है ना, वो पूरा ही ऐसे खून, मर्डर, किसी का ये किसी का वो। तो कभी कभार मैं परेशान हो जाता हूँ, बहुत परेशान। ऐसा होता है कि नहीं, आज मैं बंद कर देता हूँ, और मैंने किया है। 2-3 दिन मैंने बंद किया है, जब मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया था। वो तब हुआ था जब मैं इंटर्नशिप में था। मैं मर्डर केस देख के आया हूँ, मैं पोस्टमार्टम देख के आया हूँ, है ना। और मैं उसी टाइम ये न्यूज वगैरह कवर कर रहा हूँ। तो मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक इन द सेंस, मैं गांव में चला जाता हूँ, है ना। घर होता है तो नदी के किनारे, क्योंकि मेरा जो घर है वो गांव में है। तो मैं नदी के किनारे चला जाता हूँ, वो फ्रेश एक जो हवा है ना, वो आपको करता है। और अब मैं ऐसे दोस्तों के साथ रहता हूँ जो मुझे ये सारी चीजें बोलता नहीं है, क्योंकि मेरे जो घर के वहाँ के दोस्त है, मेरे कजिन्स है, वो लोग फॉरेंसिक क्राइम रिलेटेड है नहीं, तो वो लोग मुझे अलग वे में वो लोग इन्वॉल्व करते हैं, है ना। तो वो मेरे लिए इन सारी चीजों के लिए अलग होना है। और आ, ये जो ग्राफिकल कंटेंट वगैरह है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन आपको दिक्कत देता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए देता है। जबकि आप 1 साल 1.5 साल तक आप रोज यही कर रहे हो, जो कि मेरे साथ हो रहा है। मैं रोज देख रहा हूँ, रोज सुन रहा हाँ। हूँ। देखने यस। से भी ज्यादा है दिक्कत कहना कि मैं हर रोज सुनता हूँ किसी को ये यस। हो गई। तो मुझे याद है आपने कहा था वो एक्सीडेंट का एक आपको एक फोबिया यस, हो गया था। अभी अभी मैं या। वो बोलने वाला हूँ कि देखने से ज्यादा मुझे मतलब अभी क्या होता था ना, अभी उससे मैं कवर कर चुका हूँ। 2 महीने तक मेरा ये दिक्कत था। तो ऐसा था कि मैं रास्ते पे चलता था ना, तो मेरे दिमाग में 4 क्वेश्चन आता था, कि याद आता था कि रास्ते में चलते हुए लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। मतलब मुझे केसेस याद आते थे। मेरा फोन चोरी हो सकता है, मुझे पीछे से कोई मार सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैं जब फुटपाथ पे भी चलता था ना, तो लोग जब आते थे ना स्पीड में, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूँ फुट, तो जब लोग आते थे ना स्पीड में, तो मैं घबरा जाता था, कौन है। फिर मैं पीछे मुड़ता था, मैं जाने देता था, फिर मैं जाता था। ऐसा होता था। फिर जब ऐसे सड़क पे गाड़ियां चलते थे ना, तो ऐसे हॉर्न जब मरते थे, मैं डर जाता था कि नहीं, कुछ पीछे से तो ना कर देना। तो ये मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ 2 महीने हुआ है, मैं थोड़ा डरता था कि कुछ हो ना जाए मेरे साथ, है ना। तो मैं घबराता था इन सारी चीजों से।
तो फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे फिर इसको मैंने ठीक कर लिया, क्योंकि आपको एक डर रहता है ना कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे कि मैं एक लड़का होकर मैं सही में बता रहा हूँ, मैं रात को मैं बहुत सारी चीजें मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे कि कभी कभी मन करता है कि चल नाइट आउट पे जाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में चलता है कि नाइट आउट में क्या हो सकता है। एक तो मुझे देहरादून वाला केस याद आता है कि देहरादून में कैसा एक्सीडेंट हुआ था, है ना। और वो था इनोवा, ठीक है, उसमें भी 7 वो लोग थे। घाट पे हुआ था, हाँ। यस यस। तो हम भी कभी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो हम भी ऐसे जाते हैं 7 लोग, मुझे भी आता था अरे ये हो सकता है। तो ये केस केसेस जब मैं रिलेट करता हूँ खुद के साथ, तो मैं अपना वो प्रेजेंट में अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। थिंक आपने काफी सारा शेयर किया लास्ट क्वेश्चन में कि इस ये जो हम आपका जो रिसर्च है, एक्सपोजर है, उससे काफी सारी एंजाइटी, पैरानोया, इमोशनल फटीग आ जाता है। कभी कभी हमारा पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट हो जाता है। हम्म सो इस सब से आप कोप कैसे करते हो? लाइक ये जो इतना सारा डीप पेन होता है, इनजस्टिस, हमें दिखता है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, फोरेंसिक कितना काम करता है, वी आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क, हम अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, फिर भी डिस्टर्बिंग केसेस तो एवरी डे इंक्रीज हो ही जा रहे हैं। सो हम्म हाउ डू यू प्रोसेस एंड कोप? एक तो आपने ऑफ कोर्स बोला कि आप अपने विलेज में जाते हो, अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, दैट इज देयर, बट कब हमेशा वो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप ऐसे टोटली कट ऑफ हो जाओ हम्म या हम्म, 3 डेज के लिए। तो आप कभी कभी कैसे लॉग ऑफ कैसे हो सकते हो, एंड ये आप कैसे अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को फिर अलग रखते हो? ओके मैम। तो जो ब्रेक लेता हूँ ना, वो तो बहुत कम ही लेना होता है। जो मैंने बोला जब घर जाना होता है तब मैं ब्रेक लेता हूँ। तो ऐसे मैं बोल भी देता हूँ कि अभी मुझे इन चीज़ों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नोटिस नहीं आना चाहिए। तो ऐसे मैं मेरे जो टीम में है उनको बोल देता हूँ। लेकिन मैंने आपको बोला कि फाइक्राइम मेरा रूटीन है, तो इसी के साथ में मुझे चलना है। तो मेरा एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, वो बोलता है कि देख शकील, पेन जो है लाइफ में वो हर किसी का अलग है, लेकिन पेन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, है ना। तो और गौरव गिल सर जो है, वो पॉडकास्ट में बोले हैं, पूछा है राज शमानी में कि एक बच्चा कब से टेंशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं। तो गौरव गिल सर बोलते हैं कि जब अपने माँ के कोख में है ना। तो उसी की तरह क्या है ना कि ये तो मैंने अभी सोच लिया है, क्योंकि मैं इसको खत्म तो कर नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा है कि पहले मैं जितना स्ट्रांग नहीं था, अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया हूँ ये पढ़ने के लिए, है ना। क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया है बॉडी में कि हाँ चलो इसको ऐसे ही मुझे चलना होगा। लेकिन क्या है ना कि इंसान तो रोबोट है नहीं, मैं भी तो हूं नहीं, तो फिर भी वो इमोशनल एक कनेक्शन होता है जब भी सुनता हूँ कि बच्चों के साथ कुछ हो गया है। तो वो बहुत अफेक्ट करता है। मैं कभी कभी मेरा जो रील का जो फीड है उसमें भी ऐसा ही है। तो उसको भी कभी कभी मैं दूसरा कुछ शेयर करके मैं चेंज करता हूँ। तो उसमें क्या आता है, मैं बोलता हूँ जो रेलवे जो ट्रैक्स है उसमें आप देखोगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ड्रग्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, है ना। बहुत ही वो है। तो उनको अभी कोई 10 रुपए भी देता है ना, तो वो कुछ ऐसा ड्रग्स ले लेता है कि खाना नहीं खाता है। तो एक इंटरव्यू था, उसमें ऐसे ही जर्नलिस्ट ने पूछा था कि तुम 10 रुपए से ये क्यों खाना नहीं खा सकते। बोलते कि ये मैं अगर लेता हूँ तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये सोच के बुरा लगता है कि हो क्या गया है ना यूथ को। और ये शायद ना एक दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स को भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, एक तो है कि वो फैमिली इतना प्रिविलेज्ड है नहीं, शायद उनके पास इतना पैसे है नहीं, और ऐसे सोसाइटी में वो बड़ा हुआ है ना। ऐसे सोसाइटी में उसने बड़ा हुआ है, या उसका स्कूलिंग, उसका डेवलपमेंट ऐसे हुआ है, उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा हुआ है। तो हर एक चीज मैटर करता है। और और एक चीज है कि मैं जब सोचता हूँ ये होता क्यों है, तो मैं सोचता हूँ कि क्रिमिनल्स के दिमाग में क्या चला होगा, लाइक क्यों किया होगा।
और एक स्टेटमेंट जो मैं किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन मैं मन ही मन सोचता हूँ कि कुछ कुछ केसेस है, हर एक केसेस में बोल नहीं सकता हूँ, जिसमें कुछ केसेस में क्या होता है ना कि विक्टिम और एक्यूज, कोई या तो ज्यादा विक्टिम होता है, नहीं, कोई अगर ज्यादा एक्यूज होता है, कोई कम एक्यूज होता है, मतलब किसी का गलती थोड़ा ज्यादा होता है वो एक्यूज बन जाता है, और किसी एक का जो गलती कम होता है वो विक्टिम बन जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ केसेस है, जैसे कि कुछ केसेस में कि ऐसे ही कुछ हो जाता है, कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो ऐसे। तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ा वो करता है, और ये सारी चीजें जब मैं सोचता हूँ तो मैं इसके लिए थोड़ा डीप थिंकिंग करता हूँ कि ये क्यों होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अच्छा कैसे नहीं लगता कि जब मैं सोचता हूँ तो मैं अपने दोस्तों से 2 मिनट के लिए बात नहीं करता हूँ, तो मैं वो सोचता रहता हूँ ऐसा। तो मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे साथ में जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रहते हैं, कि क्या चुप है, छोड़ ना, घूमने आए हैं, खाना खाने है, खाना तो खा ले, क्या फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ये क्यों करना है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं बोला है कि मेरा रूटीन है, तो मैं वो आता ही रहता है, मैं ना चाहते हुए भी मेरा वो आता है। तो मेरा एक हैबिट है कि मैं सौरभ जोशी का ब्लॉग देखता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं कुछ ऐसे क्राइम रिलेटेड भी मैं वीडियो देख के खाना खाता, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि क्राइम रिलेटेड देख के मैं खाना क्यों खा रहा हूँ वीडियो देख के। तो फिर मैं उसको डाइवर्ट करने के लिए मैं सौरभ जोशी देखने को लगा कि नहीं, मैं थोड़ा इसको कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि 7-8 मिनट का होता है, तो उसमें मेरा पूरा खाना खत्म हो जाता है, तो मैं कुछ कंज्यूम करके खा पाता हूँ। ठीक है मैम। और या मतलब आई एग्री विद दिस पॉइंट कि कभी कभी ऐसा मुझे भी लगता था कि हम क्राइम पॉडकास्ट सुनते सुनते खाए ऐसा कुछ, बट अभी मैं एकदम ही क्या बोलते हैं, ऐसे जो नॉन लॉजिकल इलॉजिकल चीजें, जैसे अनुपमा हो गया, ये यस रिश्ता यस क्या हो गया, वो सब मैं देख के ही खाना खाती हूँ, भले यस। ही उसमें ऐसा कुछ चाहे उसमें मर्डर ही क्यों ना हो रहा हो, बट इट इज फन मर्डर वैसा वाला। तो तो वैसी चीजें आई ईट एंड आई सी वैसे तभी। हाँ, तो इसको मुझे लगता है कि पेन और टेंशन जो है, एंजाइटी है, इसको हमेशा के लिए कोई नहीं करता। अगर हमेशा के लिए किसी से खत्म हो रहा है तो वो मर गया, मतलब उनका डेथ हो गया, तभी खत्म होता है। हर एक चीज के लिए तो टेंशन रहेगा ही। और अभी तो अभी तो ये छोटा है, अभी हम भी छोटे हैं, तो अभी तो ये नॉर्मल स्टेज है। आगे जाके और भी चीजें और भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये सारी चीजें मैं सोच के इसको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू तो आगे करना है, क्योंकि एक स्टार्ट ठीक है करना, हम्म। बहुत बहुत लोग करेक्ट। स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करना बहुत दिक्कत है। डिफिकल्ट है। कंटिन्यू ट्रू। करने के लिए इन सारी चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना। यस। यस आई थिंक जब आपने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, उसमें बीच में भी आपने बोला कि कहीं ना कहीं सिस्टम इज ऑल्सो एट फॉल्ट। यस। जरूरी नहीं इट्स ओनली वन इंडिविजुअल। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम अभी, आप इतने सारे रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्टोरीज देख रहे हो, आपने लीगल एक्शंस के बारे में बताया, जस्टिस के बारे में बताया, तो नाउ आफ्टर अ लिटिल एक्सपीरियंस, हाउ हैज योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड द जस्टिस सिस्टम चेंज्ड ओवर टाइम? मतलब यस कि मैम। हम जब शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि आई विल, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि मैं पॉलिटिकल क्राइम्स कवर करूंगा, बट आपका शिफ्ट हो गया पर्सपेक्टिव कि इट्स अ लिटिल डेंजरस एंड आई शुड शिफ्ट माय पर्सपेक्टिव, एंड इट इज ओके। जरूरी नहीं कि सब कुछ ही मैं कवर करूँ, जैसे बॉलीवुड यस ही कवर करूँ, जरूरी नहीं है। यस। तो अभी आपको क्या लगता है, वाई क्राइम से आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है जस्टिस सिस्टम और व्यू ऑफ द वर्ल्ड को लेके? ओके, तो ये मैं काफी लोगों को मैं बोला है। तो इसको मैं आपको भी बोलता हूँ। अभी क्या है ना कि हम जितना इजीली देखते हैं, जैसे कि जो इंटरनेट है, जो मीडिया है, आप उनमें लोगों का कमेंट्स देखे होंगे कि ये क्यों नहीं कर दिया, मतलब कर सकते थे, इसको जल्दी करो, इसको ये करो, इसका ये कहा है। लेकिन मैं जब मैं एजेंसी के मतलब सीआईडी में भी मैंने काम किया है, फिर मैं लॉ भी थोड़ा बहुत इतना है कि मैं जानता हूँ कि कितना प्रोसेस लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारा इंडियन सिस्टम ही ऐसा है कि इतना फास्ट हो ही नहीं सकता। एक तो केसेस इतने पेंडिंग से, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट के काम रहते हैं, ये प्रोसेस करना, फिर
एक हायरार्की मेंटेन करना होता है, एक स्टेप मेंटेन करना होता है, उसी के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। और ये लोग जो कमेंट करते हैं कि इसको इतना जल्दी खत्म क्यों नहीं हुआ, तो इसका भी रीजन है क्योंकि लोग अवेयर नहीं है उस चीज के लिए कि लग सकता है। जैसे कि लोग सीआईडी देख के बड़े हुए, तो उन्होंने उसमें क्या देखा है कि एक फोन आया, चेक किया, अच्छा इसमें इतने डेटा है, हमें एविडेंस मिल गया। इन रियलिटी क्या होता है, नहीं होता है ऐसे। आपको प्रॉपर उसको मेंटेन करना होता है, एफआर किट में उसको कनेक्ट करना होता है, बहुत सारे चीजें उसको मेंटेन करना होता है, सर्च होता है, सीजर, ड्रग्स मिला, हम उसको अंदर कर दिए। अब लोगों को पता नहीं होगा, मजिस्ट्रेट चाहिए होगा, विटनेस चाहिए होगा, है ना, न्यूट्रल विटनेस चाहिए। तो ये सारी चीज जब मैं थोड़ा इसको जानता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ठीक है, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा है हमेशा से, और एक दिन से तो खत्म होगा नहीं। लेकिन न्यू लॉ ने ये अभी स्टार्ट किया है, 1-2 साल हुआ है, तो आगे जाके हम ये बोल सकते हैं कि अगर 10 साल में अगर चेंज नहीं हुआ तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इतने साल से एक प्रोसेस में हम और एक इकोसिस्टम में हम कवर है। तो ये मिनिमम है कि ये होगा। लेकिन बहुत ऐसे चीज मुझे बुरा लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए और या जज हो गए जो कि करप्टेड है। अब अभी पहले का तो इतना मुझे सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी 2-3 साल से इतना सुनने को मिलता है कि जजेस भी करप्टेड है। तो वो एक फेथ है ना, खत्म हो जाता है। पहले हम बस सुनते थे पुलिस वाले करप्टेड है, पुलिस करते, अब जज भी करप्टेड, जज के घर में पैसे मिल रहा है, जज ने वो किया, जज को वो मिल गया, उनके प्रमोशन के लिए ये किया। फिर आपका मेडिकल डिपार्टमेंट में आप देखिए, है ना। तो इसमें जैसे कि लोग किसको ब्लेम करते हैं, सरकार बदलो, सरकार बदलो। अब हर कोई चीज सरकार पे डिपेंड नहीं करता है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, आपने बोला कि खुद का क्या व्यू है, तो मैं खुद का व्यू बता रहा हूँ। तो हर एक कोई में गलती है, हर एक कोई करप्ट है, हर एक ऑफिस करप्ट है ना। अभी जो एक धीमन चकमा जो उड़ीसा में आईएएस थे, उनके उन्होंने 20 लाख किसी से मांगा, उसके घर से 46 लाख विजिलेंस डिपार्टमेंट में उठाया। तो उसमें मुझे बुरा क्या लगा, उन्होंने जब अपना पेपर लिखा था उसमें एथिक्स के ऊपर उसने अपना एक ऐसे या कुछ लिखा था, क्वेश्चन में आंसर, कि गवर्नमेंट में एथिक्स नहीं है, करप्शन, ऐसा कुछ था। तो जब तुम उसी पोजीशन में आते हो और तुम करप्ट कर रहे हो, तो इसमें तुम हर एक चीज के लिए पॉलिटिक्स को तुम ब्लेम नहीं कर सकते। हर एक कोई जब एक पोजीशन पे आते हैं, जब खुद का जब उसमें बेनिफिट देखते हैं, तो वो करप्ट हो जाते हैं। और ये चीज हर एक इंडिविजुअल्स के लिए अ, ठीक करना होगा। जैसे कि अभी जो यूथ है, अभी की यूथ ही आगे जाके एक पोजीशन पे आएंगे ना, तो यूथ को चेंजेस लाना होगा कि हमें वो गलत नहीं करना है। क्योंकि एक कोई हमेशा चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि जो लीडर स्ट्रांग है वो कर सकता है, वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे भी हमें करना पड़ेगा। एक स्कूल के हेडमास्टर तक करप्ट है करेक्ट। ना, करेक्ट। है ना, हम्म। पंचायत के एक प्रेसिडेंट तक भी करप्टेड है। तो हम्म। हर कोई, एक कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कोई डीन, कोई रजिस्ट्रार, कोई कुछ, कोई इंजीनियर, छोटे छोटे लेवल पे, इवन स्टूडेंट्स यूनियंस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो करप्टेड है। हाँ। जो यस। 1 साल नहीं होता उनके पास इतने अच्छे गाड़ी आ जाते, फोन आ जाते हम्म। हैं, वो आ जाते हैं, कैसे इवेंट के पैसे में। तो नहीं। इन सारी चीजों को हमें करना होगा। तो इसीलिए मैं सिस्टम को इतना ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करता हूँ कि लोग हैं। हम्म। क्योंकि सिस्टम में कौन है, लोग ही तो है। सिस्टम को हम्म। खराब बनाया लोगों ने, तो लोग उसको ठीक करने से ही सिस्टम को ठीक होगा। जैसे कि बहुत ऐसे सिस्टम है जहाँ पे ठीक ठाक काम होता है, हम्म। अच्छा खासा काम होता है ना। तो इतना ही हाँ। मैम।
नो आई थिंक आपने एकदम पॉलिटिशियन की तरह जवाब दिया है बट आई थिंक इट वाज अ गुड आंसर कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है rather than जस्ट सेइंग कि सिस्टम, बट सिस्टम है कौन कौन चला रहा है सिस्टम। तो हम्म। दैट्स ट्रू। इसमें आई थिंक हमारा एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि नाउ दैट यू लुक बैक एट योर जर्नी एंड हमने इतना सारा अमेजिंग डिस्कशन किया, तो आपको इसमें टू क्वेश्चन है। वन है आपका वाई क्राइम का फ्यूचर क्या होगा, एंड हम्म, आपका भी बिगेस्ट लर्निंग क्या है। चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे आपके स्ट्रगल्स रिलेटेड हो, या स्टोरीज रिलेटेड हो। मतलब अभी आपको आई थिंक 1 ईयर 2 ईयर्स हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी आपका लर्निंग क्या है एंड आपका फ्यूचर क्या है। ओके। तो मैं बताता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, थोड़ा मैं बताता हूँ। अभी मैं जितना सोचता हूँ कि इंसान जितना भी प्रॉब्लम में है, ये सोचना नहीं चाहिए, मतलब खुद को ये याद ना दिलाए कि मैं टेंशन में हूँ, मैं प्रॉब्लम में। उससे क्या होता है कि 20% 30% रिड्यूस होता है। और दूसरा ये है कि अकेले नहीं रहना चाहिए। इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए। इंसान को लोगों के साथ बात करना चाहिए, फोन में नहीं, लोगों के साथ। दूसरा ये है कि लोगों को चलना चाहिए, है ना। बाहर थोड़ा घूमना चाहिए, बंद कमरे में नहीं। और दूसरा है कि थोड़ा फिजिकल वर्क करना चाहिए, जैसे खेल कूद हो गया, जो कि बंद हो गया है, आज के टाइम में बंद ही हो गया, वो करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम जितने भी बड़े हो रहे हैं ना, हमें वो इतना मेच्योरिटी नहीं आना चाहिए, जैसे कि वो एक फादर फादर और बाप टाइप जो एक वाइब आता है ना, कि पापा जैसा एक क्वालिटी डेवलप हो जाता है, वो आना ठीक है। लेकिन इतना भी फॉर्मल नहीं बनना है लाइफ में, थोड़ा ऐसे बच्चों जैसे हरकतें लोगों को अपने अंदर उसको बचा के रखना है। जैसे कि कुछ अगर चीजें अगर पसंद हो, अभी भी अगर किंडर जो अगर किसी को पसंद है तो खरीदो, शायद ही तुम्हें अच्छा लगे। तो छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना चाहिए खुद के ऊपर, तो उसमें अच्छा लगता है। और मैं अगर खुद को अगर ठीक करता हूँ, मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है, एक तो मैं म्यूजिक अच्छा चलाता हूँ, है ना। और हर किसी का म्यूजिक का टेस्ट अलग होता है। और मैं थोड़ा सा अंडररेटेड म्यूजिक सुनता हूँ, इंडियन ही सुनता हूँ। और वो सुन के मैं नहाता हूँ, नहाने जाता हूँ, तो वो मुझे फ्रेश लगता है। और वो नहा के मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं आधा घंटा 1 घंटा में फोन नहीं देखूंगा। क्योंकि फोन जो है ना, फोन ऐसा है कि आपका सर दर्द दे रहा है, फिर भी आपको लगता है कि मैं स्क्रॉल करूं। मतलब ऐसा है कि कुछ भी हो रहा है, मेरे को फोन देखना है होता है, तो वो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा वो है, तो मैं इन ये मेरा रूटीन थोड़ा होता है। और होता है कि मैं अभी आपने पूछा कि मैं वाई क्राइम को कहाँ तक लेना चाहता हूँ। अभी अभी तो मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ। अभी तो मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, लेकिन मेरा इंटीग्रेटेड है तो और भी टाइम है। लेकिन हमेशा से मुझे खुद के लिए काम करना ज्यादा पसंद है। ऐसे मुझे नहीं पसंद कि जहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे कोई आके इसको रोके कि ऐसे नहीं कर सकते, ये रोक सकते, जो कि नौकरी में होता है। पता नहीं आगे इसको मैं कंटिन्यू करूँ, अपने प्रोफेशन को, यानी मैं फॉरेंसिक में जॉब करूंगा कि नहीं, मैं श्योर हूं नहीं अभी तक, है ना। अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पहले बता रहा हूँ, फिर मैं वाई क्लाइम पे आता हूँ। तो शायद मैं यूजीसी नेट करूँ, पीएचडी करूँ, क्योंकि मैं मेरे 3 जनरेशन मेरे टीचर रहे हैं, है ना। तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मेरे मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे मामा, हर कोई। तो मेरे घर में ऐसा अलग कोई नौकरी नहीं है एक्सेप्ट लेक्चरर और ये टीचर के अलावा। बस अभी हुआ है, अभी रिसेंटली हमारे जनरेशन में लॉयर है, ये है, कोई पॉलिटिशियन है, मतलब एमएलए है, तो अभी नए आए हैं ये चेंजेस। तो मैं भी इसको सोच रहा हूँ कि इसको इस तरह से लूँ। तो मैं खुद के लेवल पे शायद मैं प्रोफेसर बनूं या कुछ बनूं, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे अंदर है। और वाई क्राइम को लेके मैंने इसको काफी बड़ा सोचा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 डिपार्टमेंट है ना। एक जर्नलिज्म,
एक लॉ और एक फॉरेंसिक। पहले जर्नलिज्म ये है कि जर्नलिज्म तो मुझे कंटिन्यू करना ही है, कंटिन्यू करना है। कि ऐसा नहीं कि मुझे डेली ही न्यूज़ मुझे कवर करना है। आगे जाके शायद मैं इसको एज ए एक ही केस में दिन में उठाओ, लेकिन बहुत डिटेल में न्यूज़ उसको कवर करो, जो कि किसी और एरिया में आपको न्यूज़ और पेजेस में और न्यूज़ में आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको हमारे हमारा कंटेंट पढ़ के आपको पूरा स्टोरी समझ में आए, आप उससे फुल जितना भी डिटेल से आप उससे गेन कर पाओ, कहीं और जाके आपको पढ़ना ना पड़े, जो भी जो अभी भी हम करते हैं, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम ऐड क्या करेंगे? तो जो मेरा मन है, एक तो है कि अभी अमित शाह ने बोला कि आप प्राइवेट लैब खोल सकते हो। तो मैं असम से हूँ, तो गुवाहाटी में मेरा प्लान है। एक तो लॉ फार्म है ना, वाई क्राइम का ही लॉ फार्म, क्योंकि मेरे मामा जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में एडवोकेट है। तो एक लॉ फार्म जो वाई क्राइम के ही रहेंगे, और एक वाई क्राइम का प्राइवेट लैब, दोनों ऑफिस एक ही साथ रहेंगे। और इसको ऑनलाइन से, जो हम ऑनलाइन चला रहे हैं, इसको हम ऑफलाइन करना है। और मैं एक चीज, मैंने लैब के बारे में काफी लोगों को बताया, लेकिन एक चीज जो मैंने बताया नहीं, शायद कभी 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले, बाद सॉरी बाद, शायद वाई क्राइम एक क्राइम में एक मैं नाम देखना चाहता हूँ। कि अगर आप क्राइम के रिलेटेड कुछ ही किसी भी फील्ड में आ रहे हो, आपको जैसे कि अभी फॉरेंसिक में आना चाहते हैं, तो हम वो एक है ना कोचिंग का एक प्रिपेयर करते हैं हम एनफेट के लिए, है ना। तो उसी तरह आप आ रहे हो, आके भी आपको अगर पढ़ाई करना है तो फॉरेंसिक रिलेटेड जितने भी कंटेंट है, और आने के बाद भी अगर पढ़ाई करके अब जॉब चाहिए, तो हम जब ऑफलाइन में जाएंगे आप हमारे साथ जॉब कर सकते। तो मुझे वो क्राइम में एक इकोसिस्टम पूरा बनाना है, कि लॉ, फॉरेंसिक, जर्नलिज्म और स्टडी। तो शायद ही किसी दिन यूनिवर्सिटी बन जाए, कोई इंस्टीट्यूट बन जाए। ये बहुत बड़ा प्लान है, और मैं इसको सोचता हूँ कि आगे जाके मैं कर पाऊँ। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैं इसको खत्म नहीं कर दूंगा। ऐसा मेरा मन है कि इसको खत्म नहीं करते, इसको अगर कंटिन्यू किया है, भले ही ये स्लो चले थोड़ा, कि थोड़ा थोड़ा ग्रो करे, थोड़ा थोड़ा ग्रो करे, लेकिन मुझे ऑफलाइन लेके जाना है इसको। Oh, thank you so much, Shakil. I think it was one of the best start to our series. Thank you so much, Shakil, for sharing your journey and your insights with us today. It's truly powerful to hear the emotional and mental realities behind the world of crime journalism and forensics, something most people never get to see. We always feel, and people always feel that forensics is so fancy, but there are these mental realities that you share with us today. Is very similar to even what I face when I go through some area that I know is like very high for crime against women and children. I will always be suspicious who's following me, who's sitting over there and watching all the girls and everything. So I हम्म। think what you said was very true, or what even I feel. So, Hiral, what did you feel? Did you enjoy? Yeah, absolutely, ma'am. I think today's conversation, has helped us see the human side of people who work with stories of crime and justice. And, as Shakil shared, it takes him like an hour or two to make the headline or whatever content is posting on Instagram, and it barely takes anybody to like scroll like 5 seconds, barely 5 seconds. So yeah, it's really interesting to see what goes on behind the headlines. And yeah, I'm really excited to see the reaction of our audiences as well, ma'am. Yes, and I am sure everyone that will watch this YouTube video will learn something truly insightful. We are all constantly exposed to crime related news, crime media, crime reels, everything. I think Netflix ने भी I think 2 साल से सिर्फ crime OTT ही बना रहा है वो. And that's Yes, why yes. it's so important to talk about how all of this impacts our mental health and the ways we can care, cope,
set boundaries. This has been definitely an exciting series start to our series, Hiral. Yeah, exactly. And the conversation जो आज हुआ है that has happened here today, it's a reminder कि like even in the most intense and demanding professions, mental health truly matters and it plays a big role. So yeah, so we'll close the show then, ma'am. Yes, a big thank you to Shakil for joining in. I know because you had exams and you still joined in and gave such wonderful insights. Thank you so much. Thank Uh, you. and thank you to the lovely audience that will watch the YouTube video. This marks the beginning of our A Day in the Life of Justice series, where we'll continue to decode the minds behind crime, justice, and humanity. And don't forget to like, share, and subscribe. And stay tuned for real conversations on this World Mental Health Month. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.